Good morning students. Today we will study about the chemical properties of metals. आज हम metals के chemical properties के बारे में बात करेंगे. Chemical properties मतलब जिनको हम metal को देखकर या किसी भी substance को देखकर जिन properties के बारे में हम कोई prediction नहीं दे सकते, that is basically chemical properties, जो हमें chemistry lab में जाकर test करना ही पड़ेगा, test लगाना ही पड़ेगा और उसके बाद हमें उसका observe करके result find out करना पड़ेगा. Observation आएगी और उसके बाद result आएगा. Then you will find your conclusion. So, सबसे पहली property, that is very important property. Metals when reacts with oxygen, when comes in the contact of oxygen, they definitely react with oxygen and form metal oxides. A number of reactions are presented in this slide. So, first is when copper reacts with oxygen, copper oxide is formed. When magnesium reacts with oxygen, magnesium oxide is formed. And when aluminium reacts with oxygen, aluminium oxide is formed. ये जो reaction है burning of magnesium ribbon, ये आपकी टीचर ने, जो साइंस टीचर हैं, उन्होंने 9th क्लास में 10th क्लास में बेसिकली आपको दिखाई होगी. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बहुत डेजलिंग साउंड के लाइट के साथ जलता है और कुछ सेकंड्स तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट के साथ ही जलता है. मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो सिल्वरी कलर का होता है, लेकिन जो इसका पाउडर आता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज प्योर वाइट इन कलर, प्योर वाइट होता है कलर में. अगर आप उस पाउडर को वाटर में डिजोल्व करें और वाटर में डिजोल्व करने के बाद दोनों तरह के लिटमस पेपर ले लें या और उसके बाद उन्हें डिप करें, तो यू विल फाइंड कि ये जो मैग्नीशियम रिबन का जो आपका ऐश आया है, इट इज बेसिक इन नेचर बेसिकली एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. इसको हम एक तरीके से और याद कर सकते हैं, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस. तो जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. सो यू कैन लर्न इन दिस वे ऑल्सो. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. बेसिकली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बट फ्यू मेटल्स आर लाइक दिस जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं. जिंक इज अ मेटल जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है. एल्यूमिनियम इज अ मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मीन्स बेसिकली both means which are acidic as well as basic in nature. Some metal oxides are those oxides which show both type of properties, acidic as well as basic, and such type of oxides are known as amphoteric oxides. So this is shown by aluminium and zinc. Otherwise rest of the metals oxides are basic in nature because when they react with water they form bases बनाते हैं. आपको alkali में और bases में difference पता है, you know it very well, आपको बहुत अच्छे से पता है कि what is the basic difference in alkalis and base. alkalis क्या होती हैं? water soluble bases को हम क्या कहते हैं? alkalis कहते हैं. So you must remember this point also. This is the second property of metals. Third property, when metal reacts with water, what will happen? Students, two type of oxides and hydroxides are formed. Some metal when reacts with water form metal oxides and releasing hydrogen. This is the main part of the reaction, release of hydrogen. Whenever you carried out this reaction, you will collect this hydrogen and bring a lighted matchstick near the mouth of the test tube. A pop sound will produce and that shows the presence of hydrogen gas. So this is a very good example. This is a very good reaction to show the presence of hydrogen as well as formation of metal oxides. But some metals when react with water they form metal hydroxide. वो कुछ hydroxides भी बनाते हैं, जैसे कि आपको example मैंने सामने ही दिए हैं बिल्कुल स्क्रीन पर. When potassium reacts with water, KOH is formed. When sodium reacts with water, NaOH is formed. These are hydroxides, sodium hydroxide and potassium hydroxide. Hydrogen gas is released and heat energy is again released. It means this is an exothermic reaction. Now the question is that what is exothermic reaction? Exothermic, exo means exit होना, thermic means heat, temperature. So those reactions in which heat is produced, heat produce होती है when we carried out them, that reactions are known as exothermic reaction. ये जो word है exothermic, हम इसको पिक्चर हॉल से भी याद कर सकते हैं. आपने देखा होगा दो गेट्स पर होते हैं, उन पर एक पर लिखा होता है एंट्री, एक पर लिखा होता है एग्जिट. एग्जिट मतलब बाहर आना. तो यहाँ से हीट क्या आ रही है? बाहर आ रही है. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और जहाँ जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब जिनको हमें
हीट सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट्स को, वो एंडोथर्मिक होती है, मतलब वो एंट्री, मतलब आप एंट्री करवा रहे हैं किसकी, हीट की एंट्री करा रहे हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. नाउ मेटल्स like potassium and sodium when react with water they react violently. रिएक्शन बहुत सावधानी के साथ की जाती है, बढ़िया सा बॉम्ब वाली आवाज आती है. सोडियम के साथ अगर आप ये प्रैक्टिकल करें, थोड़ा सा सोडियम और काफी सारा पानी, अच्छी सी आवाज आती है जैसे बॉम्ब फट गया हो. तो बी केयरफुल व्हाइल परफॉर्मिंग सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन लैबोरेटरी. 12th तक लेबोरेटरी में नहीं कराई जाती बेसिकली ये रिएक्शन, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की है, दैट इज द रीजन. नाउ the next is calcium. When calcium reacts with water, then calcium hydroxide is formed. यहाँ भी calcium hydroxide बनेगा. और कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, you must understand this thing कि वो उसकी सरफेस पर गोल गोल घूमेगा. अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि when a metal reacts with water, why it will float on the surface of the water and moving here and there? The reason is that hydrogen is the lightest gas. हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है नेचर की. जब वो प्रोड्यूस होती है तो वो वाटर के ऊपर सरफेस पर आती है, लाइट है, बाहर निकल जाती है, जिस वजह से जो मेटल है जब तक वो पूरा बर्न नहीं हो जाता तब तक लगातार वो उसकी सरफेस पर घूमता रहता है. दैट इज द रीजन. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर. बस ये जो मेटल्स हैं ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते, उसका रीजन है एल्यूमिनियम एंड जिंक तो अपनी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, तो उसके आगे वो रिएक्ट नहीं कर पाते. आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन रस्टिंग के केस में वो एक स्लो प्रोसेस है, इट विल टेक ईयर्स, वो कई साल लेगा प्रोसेस होने में. नॉर्मली हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं ये जो मेटल्स हैं. नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मल हॉट वाटर के साथ भी नहीं करते, स्टीम के साथ करते हैं. लेकिन जो मेटल है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्ट ही नहीं करते बिल्कुल. आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मा है वो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, लेकिन वो इतने सालों हम पहनते हैं लेकिन फिर भी वो जो उनकी शाइनिंग है वो डल नहीं होती. बहुत साल बाद जाकर कहीं उनकी शाइनिंग में डलनेस आती है. दैट इज द रीजन कि क्योंकि वो नेटिव मेटल्स हैं और वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स. बेटा जब मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज अगेन रिलीज्ड. यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. और देखिए जो एक्टिविटी मैंने आपको व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर के साथ बताई थी, पॉप साउंड वाली, वो यहाँ आपको शो की हुई है स्लाइड में. तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. जो भी एसिड लेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लोराइड्स बन रहे हैं. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. सो दिस इज फॉर टुडे. आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे. मेटल्स की हमने कई सारी रिएक्शंस देखी, कौन कौन से कंपाउंड्स बने, हमें वो बिल्कुल ध्यान रखना है और रिवाइज भी करना है. साथ ही साथ I will take definitely a test after completing this chapter. So remember this. Thank you and have a good day.